Hello everybody. Today lecture is all about analog electronics, and inside this analog electronics, which is a part of electronics engineering or engineering, we will discuss operational amplifier. So we will discuss operational amplifier within this analog electronics, and we are just discussing this topic with the study platform Learning Education Center or Learning Educare. So in this, what we will do here a numerical. We will do here a numerical, and inside this numerical, we have here a picture of or a schematic diagram here. This is a circuit diagram, and inside this circuit diagram, what we need to do, we need to calculate this voltage V naught. Initially, what we will do, we will calculate this V naught via some methodology. So before going into the session, what we will do here is we will discuss here about the analog electronics operational amplifier, and this question is asked in GATE 1994 GATE examinations, which is after the engineering or in the 4th year of the engineering, and these questions are also the part of the curriculum of BTech or Bachelor of Engineering. तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का जो करिकुलम है उसमें भी ये पार्ट बनता है, एंड ये पार्ट बनता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में और बीटेक में, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो कोर्स में पढ़ाते हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और ये सब के जो भी स्ट्रक्चर है उसके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में ये दिस में आस्क्ड साइमल्टेनियसली एंड कॉन्टिन्यूसली. तो होता क्या है, व्हाट वी विल डू इनिशियली इज वी मस्ट नो दैट electronics as we know the mechanics of electronics is the mechanics of electron. It means that when the electron is getting to what move continuously, then definitely the movement of electron is supposed to be current. So this kind of mechanics or the mechanics which is related to the electron, that is called electronics. And analog it is called, why? Because this is having some hardware portion or analog portion, and this is there is an electronics, something called analog electronics and digital electronics. This is supposed to be analog electronics, which is also visible, somehow seems to be tangible, and the number or the quantification of the figures, the outputs, that is what in terms of numbers. Numbers में इसका वैल्यू आएगी, वैल्यू जो है नंबर में या फिर मोर देन 0 and 1, क्योंकि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो तो 0 1 पे चलते हैं, लेकिन इसके ज्यादा अगर इसकी वैल्यू आएगी तो 0 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है क्वांटिटी नंबर की, वो चीज जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है. अब इसमें ऑपरेशनल मतलब चलने वाला, और एम्पलीफायर. व्हाट इज एम्पलीफायर? एम्पलीफायर इज द सर्क्यूट और एम्पलीफायर इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक गेट्स, जो क्या करता है, किसी भी चीज का गतिवर्धन कर देता है, एम्पलीफिकेशन कर देता है, मैग्निफिकेशन कर देता है, बढ़ा के बोलता है. इसका मतलब एम्पलीफायर में जो भी इनपुट दिया जाएगा वो इनपुट बढ़ करके आएगा. Within this the circuitry of the amplifier, जो भी सर्किटरी है एम्पलीफायर की उसको सारा लगता हुआ, प्रोपेगेट करता हुआ, सारा प्रोसेस होता हुआ, और जो इनपुट में डाला गया एम्पलीफायर में बड़े मात्रा में आएगा. एम्पलीफाई करने का मतलब होता है गतिवर्धन करना, मैग्नीट्यूड और क्वांटिटी वाइज बढ़ना. अब ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है. ऑपरेशनल एम्पलीफायर, बिफोर गोइंग इनटू द सेशन, वी हैव ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑफ टू टाइप्स बेसिकली, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग. इफ सपोज इन्वर्टिंग कह रहे हैं तो इन्वर्टिंग का मतलब माइनस है, हियर इन्वर्टिंग मींस माइनस एंड नॉन इन्वर्टिंग मींस प्लस. नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग की पहचान ये होती है एम्पलीफायर की कि जो नॉन इन्वर्टिंग में यानी प्लस वाले पोर्शन में अगर वोल्टेज अप्लाइड है तो ये कहलाएगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. अगर ऐसा ही क्या होता, suppose this may happen that the negative portion is having the voltage, because here the negative portion is supposed to be grounded, ये grounded है, और जो पॉजिटिव पोर्शन है इसमें क्या है, वोल्टेज लगे हुए हैं. तो दिस इज सपोज टू बी व्हाट, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प. अगर ये इन्वर्टिंग ऑप एम्प होना है तो इसको क्या होना पड़ता, यहाँ पर माइनस होता, यहाँ माइनस में ये चीजें लगी होती ऊपर 2 -1, और ये वाला जो पॉजिटिव पोर्शन है ये ग्राउंडेड होता. That is supposed to be then only inverting. So इसीलिए invert मतलब उल्टा होना और non invert मतलब ऐसा ना होना. तो इसीलिए now we will study the question.
वी विल स्टडी क्वेश्चन लाइक गिवन फिगर, ये जो फिगर दे रखा है दिस वन शोज, ये दिखा रहा दर्शा रहा है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर समर, तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर समेशन दिखा रहा है किसका, 2 और -1 वोल्ट का, जो कि इस पॉइंट पे आके रुक रहे हैं और यहाँ से ग्राउंडेड है और यहाँ पॉजिटिव पॉइंट पे लगा हुआ है, ये एम्पलीफायर है लाइक दिस विथ V1 is equal to 2 वोल्ट, जिसमें वोल्टेज जो पहला वोल्टेज है वो कितना है, 2 वोल्ट है, दिस वन इज सपोज टू बी समथिंग लाइक 2 वोल्ट एंड V2 is equal to -1 वोल्ट, और V2 जो है वो कितना है, -1 वोल्ट है, सो V2 is supposed to be -1 वोल्ट। द आउटपुट वोल्टेज V0, तो आउटपुट वोल्टेज V0 कितना होना चाहिए, ऐसे निकालना है, इस प्रकार से निकालना है, तो आउटपुट वोल्टेज V0 कितना होना चाहिए, तो इसीलिए दिस इज एम्पलीफायर, एम्पलीफायर में जो इन्वर्टिंग एंड है वो ग्राउंडेड है और जो नॉन इन्वर्टिंग एंड है वो इनपुट से लेस्ड है, लसा हुआ है, सदा हुआ है, और वो क्या इनपुट है, एक जगह पर 2 वोल्ट है और एक जगह पर -1 वोल्ट है, तो इस तरीके से ये बताना है कि आउटपुट कितना आना चाहिए। अब कैसे करेंगे, अब ये वाला जो फीडबैक है, फीडबैक इज व्हाट, 2R, ये 2 into R यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 2 into R, यहाँ पर 2 ये नोड 2 है, दिस इज व्हाट नोड 2, दिस इज नोड 1 this is node 1 and this is what node 2. Now here we have the resistance R, also here we have some more resistance which is having the value R and R, this is also resistance, some resistance R, this is also having some resistance R, and now what, here we have R also resistance, these are the values of different resistance, and here we have the node, node मतलब होता है गांठ, कोई चीज गांठ, कहीं पे गांठ लगाते हैं सुतली से तो वो नोड है, तो नोड ये पहला नोड है, दिस इज सपोज टू बी फर्स्ट नोड, दिस इज सपोज टू बी सेकंड नोड। अब क्या करेंगे कि अब केसीएल अप्लाई करना है, बिफोर अप्लाइंग द केसीएल वी मस्ट नो, ये जानना बहुत जरूरी ऐसा है कि केसीएल क्या होना चाहिए, तो ये जानना जरूरी है, तो केसीएल क्या है, केसीएल इज व्हाट, किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल क्या होता है, किरचॉफ्स एंड करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, तो किरचॉफ्स करंट लॉ which is also named as point law, which is also named as node law, और which is also named as junction law, इतने सारे एक साथ इसके नाम हैं, तो ये लगाएंगे, अब किस पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाते हैं एट नोड 1 केसीएल लगाते हैं। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, किरचॉफ लॉ सेज दैट किसी भी जंक्शन में जो समेशन ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू, आई से दिखाते हैं करंट इज इक्वल टू 0, सारा का सारा करंट का जमावड़ा और जो जम जाता है आता सब जगह का सम जो है किसी भी नोड पे करंट का वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर इसको और इलेबोरेट करें, इफ यू विल इलेबोरेट दिस मच, इफ द इलेबोरेशन विल बी मच, देन इनकमिंग नोड टुवर्ड अ जंक्शन दैट इज इक्वल टू आउटगोइंग नोड, आउटगोइंग करंट, तो इनकमिंग करंट किसी भी नोड की तरफ आती हुई इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब क्या हो गया, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अप्लाई व्हाट, केसीएल, applying KCL at node 1. Now we are applying here the KCL what, node 1. So what we will do, if we will apply here what, अब देखिए 2 volt minus V volt in this first node, 2 volt minus V volt, because as we know V is equal to I into R, it means that voltage is equal to current into resistance. How this comes? This comes after the simplification of Ohm's law. Ohm's law ये बोलता है कि I and current I is directly proportional to voltage, किसी भी कंडक्टर या मटेरियल में जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके वोल्टेज के, जब फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी दैट रिमेन्स सेम और कांस्टेंट, दैट मे नॉट वेरी, तो ऐसे समय पर V इज इक्वल टू आई आर होना चाहिए, और फिर V इज इक्वल टू आई आर होना चाहिए तो क्या होगा, 2V माइनस V, मतलब 2V में से कुछ वोल्टेज इसने रख लिया तो फिर जो बच गया, इसीलिए बोला कि क्या बोला यहाँ पे, दिस इज द करंट, लेट अस सपोज हियर इज द करंट, ये 2 वोल्ट से ऐसा करंट कुछ आ रहा है यहाँ पे, एंड दिस करंट कमिंग टू हियर, ये करंट यहाँ को जा रहा है, नाउ दैट इससे भी कुछ करंट आ रहा है इस तरीके से इस नोड पर, या यूं कह लें कि ये नोड तो सेम ही चीज है, ये इन दोनों को मिला भी देंगे तो चलेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ है तो नहीं, तो इसीलिए ये करंट आ रहा है यहाँ पर, ये करंट आ रहा है यहाँ पर, और ऐसे करंट जा रहा है, लेट अस सपोज, ऐसे भी कर सकते हैं, या यूं कहें कि दिस करंट व्हाट, या यूं कहें इस तरीके से कि दिस करंट इज कमिंग हियर एंड दिस करंट गोज टू हियर,
अब क्या होगा, और यहाँ पर जो वोल्टेज V है, द सेम वोल्टेज इज हेयर, द सेम वोल्टेज V इज हेयर। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई डिवाइस, इसके बीच में कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसपे वोल्टेज गिर जाता, पजेज हो जाता, तो जितना वोल्टेज यहाँ पर नोड 1 में है, सेम वोल्टेज इज हेयर। तो इसका मतलब अब क्या करेंगे, नाउ वी विल अप्लाई द KCL। नाउ वी विल अप्लाई द KCL। इसका मतलब ये है, दिस करंट, लेट अस सपोज दिस इज I1 करंट और दिस इज I2 करंट, दिस इज इक्वल टू I3 करंट। ये क्योंकि I1 और I2 इस नोड पे मिल रहे हैं और ये I3 बन जा रहा है, तो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब ये जो करंट है I1 जो यहां से आ रही है ऐसे, तो नाउ व्हाट वी विल, टू वोल्टेज 2V माइनस V वी विल से, इसीलिए क्या किया, 2 माइनस V, दिस इज V व्हाट, दिस इज V ऑफ व्हाट, दिस इज V ऑफ यूनिट का V है ये, दिस इज अगेन ऑफ यूनिट V एंड दिस V इज नो, क्योंकि यहाँ पे तो वोल्टेज पता नहीं है कितनी है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है नहीं कि कितनी रेजिस्टेंस है और कितना जो है वोल्टेज रख लेगा, इसीलिए एज्यूम कर लिया गया है V रख लेगा मान लीजिए। तो क्या होगा देन, 2 माइनस V, यहाँ पे तो पता ही है 2 वोल्ट है, यहाँ पे पता नहीं है तो V वोल्ट है, तो इसीलिए -1 वोल्ट एंड V वोल्ट हियर द सेम थिंग। सो इसीलिए ये वाला जो करंट आया है यहाँ पर 2 माइनस V, क्योंकि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, तो ऐसे रख सकते हैं लाइक व्हाट, I1 दिस इज, लेट अस सपोज I1 प्लस I2 देन दिस इज इक्वल टू I3। तो I1 कितना होना चाहिए, अब I इज इक्वल टू कितना आएगा, नाउ वी विल एज्यूम हियर I इज इक्वल टू V अपॉन R, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ना वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रेशियो ही करंट है, तो नाउ व्हाट हियर I1 इज व्हाट, I1 लेट अस सपोज व्हाट 2 माइनस V अपॉन R, तो ऐसे बोलूंगा 2 माइनस V अपॉन R। वोल्टेज ये है, जो बचा वोल्टेज वो 2 माइनस V है, जो इस 2 वोल्टेज में से जो वोल्टेज यहाँ पे चला गया और माइनस V, इसीलिए बोला कि 2 माइनस V अपॉन R, इतना वोल्टेज प्लस। अब नेक्स्ट इज व्हाट, ये करंट आ रहा है I2 निकालना है, I2 व्हाट, -1 माइनस V अपॉन R, तो -1 माइनस V अपॉन R दैट इज इक्वल टू I3 इज व्हाट, V अपॉन R। अब I3 जो है वो यहाँ पे वोल्टेज V है, पता नहीं है कितनी वैल्यू है, तो V माइनस 0, क्योंकि ग्राउंड का पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्टेज होता है, 0 वोल्ट, बिकॉज दिस इज अ रेफरेंस पोटेंशियल, ग्राउंड पोटेंशियल। सो व्हाट, V माइनस 0 अपॉन R, तो V अपॉन R। तो ये एक इक्वेशन यहां से निकल के आ गई, और यहां से निकल के आ गया V की वैल्यू, दिस इज सपोज टू बी समथिंग लाइक 1/3 वोल्ट्स। इसका मतलब ये है कि ये जो वोल्टेज है, दिस वोल्टेज इज 1/3, दिस इज ऑल्सो 1/3, ये कहने का मतलब है। सो हियर वी हैव द वोल्टेज V which is 1/3, here also we have the voltage which is what, 1/3, 1/3। Now this is not the solution, because solution तो V naught निकालना था, आउटपुट वोल्टेज निकालनी है, ये तो this is the intermediary parameter, these are called the intermediary parameters, because these parameters are not asked in examinations, they are not asked in examinations, they are only just पूछा गया है, तो इसीलिए ये इन बिटवीन पैरामीटर्स है, इन बिटवीन वेरिएबल्स जो कैलकुलेट हुए हैं वो है। अब इसके आगे क्या करेंगे, वी हैव वन मोर नोड हियर, लाइक एक और नोड मिलती है इस फिगर में, नोड 2, ये वाला नोड है, दिस इज व्हाट, नोड 2। नाउ अप्लाई दिस नोड 2, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो व्हाट वी विल डू, हियर वी हैव द 0 वोल्ट, बिकॉज ये तो 0 वोल्ट है, 0 माइनस V, यहाँ पे भी V मान लिया, सेम वेरिएबल वी जस्ट एज्यूम, same variable, we don't assume another variable, let us suppose what 0 minus V upon R here, तो 0 वोल्ट माइनस V upon R, क्योंकि ये करंट आ रही थी यहां से, एंड दिस करंट इज व्हाट, अगेन दिस करंट इज V upon R, वोल्टेज अपॉन R का रेशियो। तो वोल्टेज क्या है, 0 माइनस V upon R, तो ये लग दिया 0 माइनस V upon R इज इक्वल टू, जो करंट यहाँ है वो सारी की सारी यहाँ जा रही है, यहाँ तो कुछ जा नहीं रहा, तो इसका मतलब, बिकॉज अभी क्यों नहीं जा रहा मैं बताता हूं, ये सारी की सारी यहाँ वो करंट जा रही है, तो क्या होगा, V माइनस V नॉट अपॉन 2R, तो V माइनस V नॉट अपॉन 2R, तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो V नॉट इज इक्वल टू 3 वोल्ट आ रहा है, कितना आ रहा है, V नॉट इज इक्वल टू 3 इंटू 3 वोल्ट नहीं आ रहा है, 3 इंटू V आ रहा है, 3 इंटू V, दिस V,
this voltage. अब V जो है वो निकाल रखा how much 1/3 volt we have just calculated. Now if we just calculated 1/3 to be as this volt at the nodes and this V naught is equal to 3 into 1/3. ये 3 से 3 कट गया तो then what is 1 volt. इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है V naught that is calculated to be as what 1 volt or single volt or unity voltage. अब एक चीज और है एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाने योग्य ऐसा था कि जब करंट अगर यहां से गई तो फिर कुछ करंट यहां चली जाती, कुछ करंट यहां चली, यहां क्यों नहीं गया? तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, ये थ्योरी में बताऊंगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो भी इंपीडेंस होता है, इंपीडेंस मतलब होता है कि करंट पास करने का जो कलेक्टिव अपोजिशन, ऐसा जो विरोध, तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो उसका जो आइडियली जो होता है वो इन्फिनिटी होता है. तो इसीलिए जो भी इनपुट इंपीडेंस है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो इंपीडेंस है किसका, इस एम्पलीफायर का, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो बहुत ज्यादा होता है. बहुत ज्यादा होने की वजह से करंट इसके अंदर नहीं जा पाता है. तो दिस इज वन, दैट इज व्हाई some current that has not to be gone here, सारी की सारी करंट यहाँ चली गई. So we just apply what here, क्या अप्लाई किया गया, Kirchhoff's current law अप्लाई किया गया. एक बार summarily we'll see this topic. Then what we will see here, what this question is of gate something, gate examination, analog electronics का question है और operational amplifier का question है. And we are learning this via the medium learning education and center and learning education. This question, this figure is of non-inverting op-amp. Why this is supposed to be non-inverting summer? Why it is called to be summer? Because यहाँ पर दो voltage, multiple number of voltage are coming and summed up. That is why जोड़ रही हैं, इसीलिए इसको summer बोला. Summer मतलब जोड़ने वाला. So what given figure shows a non-inverting op-amp. Why it is called non-inverting? Because ये जो positive वाला है non-inverting, here we have the applied voltage. That is why it is called non-inverting. Inverting को negative होता है, उसे inverting कहते हैं. So here in this given figure we have the operational amplifier. This is an operational amplifier which is having input and the output is supposed to be like this. Given figure shows a non-inverting op-amp summer with V1 is equal to 2 volt. Here V1 is supposed to be 2 volt. Here V2 is supposed to be minus 1 volt. And the output voltage V0 is what? What is the output voltage? V0. Here we will apply just what? If we will apply here the KCL at this node 1. This node 1 is assumed by a voltage V. This node 2 is also assumed by some voltage V. So here we have this current is going here because here the operational op-amp is having the high what impedance. अगर बहुत ज्यादा impedance होता तो यहाँ तो करंट जा नहीं सकता, सारा का सारा करंट इसका यहाँ जाएगा. ये करंट will go here and at this node the current will go down to this ground. तो क्या होगा, I1 plus I2 is equal to I3. So we have written just I1 plus I2 is equal to I3. And as we know from the Ohm's law the detection, Ohm's law से जो निकल के आता है वो है V is equal to voltage is equal to current into resistance, V is equal to I into R. So यहाँ से I की वैल्यू अगर निकालेंगे तो voltage upon resistance. So current is the ratio of voltage and resistance. Now what we will do here is I1 कितना है, I1 is what, I1 is what, I1 is what 2 minus V. Here we what, 2 minus V, 2 minus V upon R. In between we have the resistance R plus I2 is what, minus 1 V upon R. Here we have just written is equal to V minus 0 upon R. So V minus 0 upon R is V upon R definitely. Now here the voltage whatever we have assumed here at node 1 is the same as here in this node because in between there is no element, no electrical element in which the voltage holds. उसके बाद क्या होगा, here we have V is equal to 1/3 volts. तो voltage जो है 1/3 volt निकल के आ गया. अब क्या हुआ, अप्लाई वी जस्ट अप्लाई KCL. अब अप्लाई किया भाई KCL एट नोड 2 पे. So 0 volt, ground is having 0 voltage. So 0 minus V upon R, 0 minus V upon R, that is equal to the entire here the current because this current is going inside this node and after this passing here.
So this incoming is equal to outgoing. So V minus V naught upon 2R. V minus V naught upon 2R. So here we just assume is कितना निकल के आया, V naught is equal to 3 into V. V already निकला हुआ है, node voltage 1 by 3. So V is equal to 3 into 1 by 3, here 1 volt. So single voltage or unity voltage. So this is the question which just generally asked in GATE examinations and in university examination or college examination, day to day the curriculum examinations, ये सब पूछे जाते हैं. और इस तरीके से जो है और भी whenever we'll go much more about the analog electronics, either in case of op-amp, BJT bipolar junction transistor, FET field effect transistor, in whatever category we'll go like this, the different characteristics of those transistors also. So तब ऐसे समय पर सब पढ़ लेंगे. फिलहाल we were discussing about the analog electronics op-amp, a numerical question.